السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ باجی۔ الحمد للہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 کریں گے۔ 26 سے شروع کریں گے، سپارہ 5واں، اور پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرے رکوع کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 سے۔ جی تو دعائیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمان یا رحیم یا اللہ مدد، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کون بہن شروع کرے گی؟ رشید؟ میں پڑھوں؟ ہاں جی رفت بہن آپ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب پھر پہ علیکم۔ دیکھیں، سنا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، سنا 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 جلدی پڑھنا ہے، سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنن الذین ہوں۔ سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ٹھیک ہے بس۔ یرید علیم حکیم ہے، علیم علیم حکیم ہے، علیم حکیم، گناہ نہیں نہیں، ہوگا جا۔ اسے ٹھیک کریں نا، یہی ہے نا علیم میری بہن، علیم نہیں ہے، عین ہے، علیم علیم، علیم حکیم۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے، علیم، عین پڑھنا ہے لیکن اس کو جھٹکا نہیں دینا، علیم حکیم۔ ٹھیک ہے۔ علیم، عین، علیم، اپنی طرف سے تو بچی ہی نکالتی ہوں۔ علیم من بھی نہیں حکیم، کرنا، من کریں گے تو کیا ہوگا؟ علیم حکیم۔ من نہیں، آپ نے مخرج میں رہے، بس زبان کو وہاں پہ لگائے رہے، من کہیں گے تو زبان باہر آتی ہے انشاءاللہ۔ علیم حکیم، من حکیم، بس من، کیونکہ یہ اظہار ہے نا، جی جی اظہار ہے، آگے حروف ہلکی ہے نا۔ ہاں جی، علیم حکیم۔ ہاں تو اس کے مخرج میں بھی رہنا ہے نا، مخرج میں بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ لیبین، اور چاہتا ہے اللہ، جا چاہتا ہے اللہ، جا ارادہ کرتا ہے وہ اللہ، بچی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی نیچے نا با محاورہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جو جی، لکھا ہوا ہے ویسے میں بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ہو اچھا، سکتا ہے، ہاں جی، لیبین کے یہ صرف بیان با کرے، محاورہ، اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، لاکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور ہدایت دے تمہیں، سنان الذین طریقے ان لوگوں کے جو من سے قبلکم پہلے تم سے، ویتوب اور وہ متوجہ ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ علیم
इल्म वाला, हकीमुन हिकमत वाला। और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए ये मामलात खोल कर बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों के तरीकों पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है। नेक लोगों के तरीकों पर, तरीकों नेक पर लोगों चलाए। के, तुमसे पहले नेक के, हाँ जी, हाँ, तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों तो के ये तरीकों देखिए पर सुनन, हाँ, चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे, यानी हम्म, तुमसे तुम्हारे जो पहले वाले नेक लोग थे उनके तरीकों पर चलाए। ठीक है बात। हम्म। और तुम्हारी अब तौबा जहाँ पे कबूल अल्लाह करे। ताला ने नेक लोगों का तरीका कहा है, यानी कि पहलों के तरीके पर चल सकते हैं। जी, हम्म। लेकिन शर्त क्या है पहलों के तरीकों पर चलने का? क्या शर्त, क्या शर्त है? वो नेक हो। जो नेक हूँ। कोई हाँ बहन जी, बताए कि क्या शर्त है? पहले पहले लोगों के तरीकों पर चल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है उनके तरीकों पर चलने की? कि वो नेक हो। वो अल्लाह नेक को हूँ एक और क्या? मानने वाले हों। नेक अल्लाह हूँ और जो अल्लाह के हदायत अहकामात के मर्द अल्लाह मुताबिक के, को वो हाँ जी जिंदगियां चलते गुजार रहे हुए जी, हों और अल्लाह जी। के कर रहे हों। अहकामात, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, यानी कि ये नहीं है कि अल्लाह ताला बिल्कुल ही कहते हैं कि कंडम करते हैं पहलों के तरीके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीके थे जो कि सहाबा कराम अपने पहले तरीकों पर काम किया करते थे, तो अल्लाह के नबी ने रोका नहीं वहां पे। लेकिन कुछ जो थे इस्लाम में चेंज करने के काबिल, उनको कर दिया चेंज, बदल दिया। तो ये सुनन होता है तरीका, सुन्नत भी इसी से है, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। सुन्नत भी इसी से ही है। मतलब तो हम कहते हैं ना इसका सुन्नत, रूट वर्ड बाकी क्या सुन्नत होगा पे फिर? अमल करते हैं, तो ये सुनन, सुनन सुनन, यही होगा ना फिर रूट वर्ड। सीन नून नून। सीन नून नून। हाँ, सुन्ना भी कह सकते हैं। मेरा ख्याल सुन्ना होगा, सुन सीन नून हा, सुन्ना। सुनना सुनना। नहीं? लेकिन ये देखें कि आप हम इस्तेमाल करते रहते हैं इसको ना, सुन्नत सुन्नत करते रहते हैं, जी करते हैं ना? जी। जी। तो ये फिर देखें हम तो उसी से है, लेकिन हमें पता नहीं चलता ना। तो जी। इंशाल्लाह सुन्नत का मतलब क्या है? तरीका। तरीका। सुन्नत पे चलने का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी तरीका सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम के के ये तरीके पर तरीके पर चलना, चलना। तरीके ठीक है? पर चलना। हाँ जी। हाँ, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलना है। सुन्ना का मतलब ही यही है। ठीक है इंशाल्लाह। आगे मैं मजीदा पढ़ बहन लूं? आप पढ़ लें। अच्छा बस, आऊज़ु बिल्लाहि ओके, मिनश। आगे वाली 2 आयतें पढ़ लें अच्छा छोटी-छोटी। ठीक, हाँ जी, बस दूसरी छोटी है, हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम वयुरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम व खुलिकल इंसानु दईफा, वल्लाहु और अल्लाह क़ा युरीदु भी मोटा रखें, खुलिक़ा खुलिकल, क़ा भी मोटा है। अच्छा जी, खुलिकल इंसानु दईफा, हुँ, वल्लाहु और अल्लाह युरीदु इरादा करता है आन के यतूबा तवज्जो करे अलैकुम तुम पर, वयुरीदु और इरादा करते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो यत्तबिऊना पैरवी करते हैं अश्शहवाती इश्शहवाती होगी, अश्शहवाती, जहाँ पे देखें अश-शहवाती होगी, अल-ज़ाब आ जाता है ना, हाँ तो जी, फिर ज़बर अश्शहवाती ही होगी, हाँ लगती जी, है हमज़तुल वस्ल के हाँ ऊपर, जी, ठीक ठीक है? पढ़ा मैंने सुना मैंने, हाँ बताया जी। हुआ ना पहले। हाँ जी, जब हमज़ा आ जाए हम, हाँ, अल आए तो हाँ जी, हाँ, हाँ जी, लाम अश्शहवाती, तारीफ़ आ गया है ना हाँ जी, जहाँ लामे पे, तरीफ़ आ जी गया, हाँ जी। और मअर्रफ़ बिल-लाम भी इसको कहते मैंने हैं ना, मैंने मअर्रफ़ ठीक पढ़ा था, बिल-लाम। जी। लेकिन मैंने समझा कि हाँ, शायद मैं गलत ना तो पढ़ लूँ, यूँ हाँ। ही जो लाम आ जाता है तो हमज़तुल वस्ल के ऊपर फिर
نہیں شہوات ہی الشہوات ہی ہوگا. ہاں جی زبر آ جاتی ہے. ہاں جی الشہواتی خواہشات کی ان کے تعمیلو تم پھر جاؤ میلن پھر جانا عظیمہ بہت زیادہ. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توجہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت زیادہ دور ہٹ جاؤ. یریدو ارادہ کرتا ہے یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے یخففا یریدو نہیں ہے یریدو. یریدو ہاں جی یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے یخففا وہ آسانی فرمائے ان کم تم پر وخلقال اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفاً بہت کمزور. اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان بہت کمزور. ضعیفاً میں روٹ ورڈ دیکھیں. ضعیفاً داد آئین فا نہیں عین ہوگا فا کیا باجی؟ مطلب ہے؟ داد عین فا باجی ضعیف بوڑھا سسٹر. بوڑھا ہاں جی صحیح، کمزور. بوڑھا ہاں جی کمزور. داد عین فا وہی ہے. دوف ہم کہتے ہیں دوف آ گئی جی کمزوری آ گئی اس میں. جی ٹھیک ہے تو یخفف یہ کیا ہے؟ ہلکا کرنا. آسانی یہ کرتا وہ ہے آسانی یعنی اس آسان. کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خا یہ پہلے بھی پڑھا فا ہوا ہے ہم نے. فا 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 خف یخف یخف نہیں یوں تو نہیں ہوگا وہ تو خا فا چھوٹی ہا یا نہیں ہوگا باجی. روٹیا خفیون. یخفی خف خا فا یا خفیون سے ہے یا یخفف خفی قاف نہیں قاف یا خفیہ سے ہے یخفف. ہاں جی تخفیف سے ہے تخفیف. ہاں جی کاف تخفیف. تخفیف خا ہم کہتے ہیں نا تخفیف کرنا ہاں جی ہلکا تخفیف ہاں کرنا. جی نیچے تو پھر تو خا باجی فا نیچے یا ہی لکھا ہوگا ہوا باجی. آسانی. ترجمے میں لکھا ہوا ہے فا باجی فا تخفیف. فا ہاں جی کیونکہ دو فا ہے اس میں ہاں تو جی 3 تخفیف فا کرنا. دو خفا ہی آئیں گے سسٹر پھر. خا فا فا نہیں ہلکا کر دینا آسانی کر دینا. خا فا یا نہیں ہوگا. نہیں. خفی ہاں فا کیونکہ 3 فا ہے نا وہاں پہ. ہاں جی جی باجی ہاں جی خفیون خفیون ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا ہاں جی خفیہ ہاں طور جی پر ہے خفیون نا. ہاں جی باجی ہاں اب جی روٹ ورڈ میں خا فا فا خفف خف یخفف اس خف طرح. تو یہ اب 3 فا آئی ہیں جہاں پہ ہے نا. تو جی کتنی فا روٹ ورڈ میں آئیں گی؟ 3 دو کہ آئیں 2؟ دو آئیں گے. دو 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 خفف ہاں جی. انشاءاللہ تعالی آگے انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. بس ہاں جی باجی میں نے کر لیا. انشاءاللہ 1 منٹ میں اوپر کرتے. ٹھیک ہے آپ دا بہن آپ پڑھیں پلیز. باجی میں پڑھوں؟ چلو وہ پڑھ لیں سسٹر وہ دوسری سسٹر پڑھ لیں. پڑھ لیں آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے پڑھ لیں. یا ایھا الذین آمنو. پڑھے رضیہ بہنا پڑھے. جی باجی. یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا. اللہ دینا نہیں ہے یا ایھا الذین. یا یا ایھا حی الذین اللہ دینا نہیں حمزہ نہیں ہے. یا حی یا نہیں الذین. آپ کہہ رہے ہیں ایو کو حیو کہہ رہے ہیں. ہاں جی 1 منٹ سٹاپ کریں. آپ ایو کو حیو کہہ رہے ہیں اور ہا کو حمزہ پڑھ رہے ہیں. حمزہ کو ہا اور ہا کو حمزہ پڑھ رہے ہیں اس کا خیال رکھیں. اچھا باجی. یا ایھا اب دوبارہ الذین. پڑھیں. یا ایھا الذین. نہیں ہاں غلط اب پڑھ دیں بہتر بس. ہے. اچھا. یا ایھا ٹھیک ہے الذین اب ٹھیک ہے. پہلے آمنو. غلط تھا. آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون
तिजारतन अन तरादिम मिनकुम बिलबातिली बिलबातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला अंतकूना, तो अंतकूना नहीं है, अलिफ नहीं है। मेरे ये पता नहीं चलता, यानी कि पीछे जाती है आवाज, क्योंकि पढ़ रही हैं लोग और मैं बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा उनको क्या वजह है। सिस्टर आवाज लेट आती है, मुझे लगता है थोड़ी सी आपकी ना। नहीं ठीक आती है नहीं बाजी वैसे। ठीक है। नहीं, हाँ जी, अब कई दफा आई लग है रही बीच है में। यही आवाज आपको बच्चे आपको लग रही होगी ना ऐसे। हाँ जी अन अच्छा चलो करें तकूनु पता। अन ठीक है, तकूनु खा फा तिजारतन। फा ही इसका रूट वर्ड है जो ऊपर वाला था। अच्छा बाजी। खा 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 वो बाजी जो पहला पढ़ा था बाजी ने, उसका हाँ जी। पढ़ा। ठीक है, हाँ अच्छा बाजी वो जी। जो बता रहे हैं। खफिफ पीसेस, देखो, हाँ जी खा फा फा ही है। इल्ला अन तकूना ठीक है पढ़े। तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। एल एल या अय्यु या अय्यु इन्नल्लाह काना बिकुम, इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। दोबारा पढ़े आखिर वाला, इन्नल्लाहा काना बिकुम रा को मोटा रहीमा करें। रहीमा रहीमा रहीमा, हा को निकाले। रहीमा रहीमा। ठीक है, या अय्युहा ए अल्लज़ी वो लोगों जो आमनु ईमान लाए हो ला ना ताकुलू तुम खाओ अमवालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिल बातिल नाहक तरीके से इल्ला मगर अन ये के तकूनु हो ना तकूनु हो तकूना सिर्फ तकूना हो अब तिजारतन तकू ना पहले लंबा कर रहे थे, अब तकू नून के ऊपर पेश डाल रहे हैं। मेरा ख्याल तकूना उनका जो है, जब मेरा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हाँ, तकूना हो तिजारतन तजारत अन से तरा तरादिन बाहमी रजामंदी मिनकुम तुमसे वला ना और ना रजामंदी का इसका मतलब है। मिनकुम तुमसे वला और ना तख्तुलू तुम कत्ल करो अनफुसकुम अपने आप को इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है बिकुम तुम्हारे साथ रहीमा बेहद रहम करने वाला। ए लोगो तुम आपस में एक दूसरे तो का जे अपने आप को कत्ल करने का अब क्या ले रहे हैं। अपने आप जी, चला गया नहीं। ठीक है पढ़े। अपने आप को बजी वो जो रजिया बहन पहले। पढ़े। अच्छा जी। है लोगो अपने तुम अपने आप को कत्ल ना करो, है ना, क्या है मतलब इसका। जी, तुम आपस में एक खुदकशी ना दूसरे करो। को हम्म खुदकशी ये खुदकशी। देखिए, इसको दोबारा पढ़े। ए ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ, मगर ये कि बाहमी रजामंदी से तजारत हो, यानी कि एक दूसरे से हेर फेर करके तजारत में नहीं खाना। और ना तुम कत्ल करो अपने आप को, बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है। एक तो कत्ल का जे कत्ल है ना, जरा क्या कहते हैं हम, खुदकुशी करना ना। खुदकशी हाँ जी, खुदकशी हाँ जी। एक तो अपने आप को कत्ल करना ये होता है ना।
جی जी तो दूसरा क्या खुदकुशी होता है कि जब जो मुसलमान है वो दूसरे का अपना ही होता है, ठीक है? यानी हाँ आपस में दूसरे एक दूसरे को कत्ल ना मुसलमान करो, मुसलमान को भी ठीक है? कत्ल ये करे भी फिर जी एक इससे निकलता है। अच्छा ठीक है, आगे इंशाल्लाह कौन बहन पढ़ेगी? आपदा बहन? बाकी ये थोड़ा सा जो है ये भी पढ़ते ही है ये छोटी सी आयत है हुँ। आपदा बहन आप आगे वाली 2 पढ़ लें? अस्सलाम आपदा वालेकुम बहन? जी सॉरी सिस्टर। हाँ जी, वो मेरा फोन आ गया वालेकुम था बीच अस्सलाम में रहमतुल्लाहि सिस्टर। व बरकातहू। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानं व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। सिस्टर 2 पढ़ लूं? हाँ बाजी ने कहा था बाजी ने 2 पढ़ कहा था लेना। 2 ही पढ़ लो। आइन को आप अपने आइन को ना मोटा करा करें। सिस्टर वो मैं निकालती हूँ तो वो फिर मोटा हो जाता, कोशिश तो करती हूँ लेकिन वो निकालने के चक्कर में मोटा हो जाता है। हाँ जी, कोशिश करते रहें क्योंकि अगर इसको भी हाँ जैसे जी, आप अब नून को भी मोटा कर दे ना ना रॉ को मोटा करना है, नारा। ठीक है? हाँ जी क्योंकि सिस्टर, जो नारा। बारीक हरूफ है उनको मोटा नहीं कर देना वरना जी गड़बड़ हाँ है। जी सिस्टर, हाँ जी हाँ हुँ, जी। ठीक है। तजतनिबू कबाइरा मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वनुदखिलकुम मुदखालम नहीं वनुदखिलकुम मुदखालन करीमा। अच्छा जी, अब सिस्टर मैं पढ़ना तर्जुमा, इसको थोड़ा बड़ा कर वमन और जो कोई या फल करेगा ज़ालिका ये उद्वानन ज्याती व जुल्मन और जुल्म फसौफा तो अन करीब नुस्लीही हम दाखिल करेंगे उसे नारा नारा आग में वकाना और है ज़ालिका ये अलल्लाही अल्लाह पर यसीरा बहुत आसान। इन अगर तजतनिबू तुम बचो हुँ, कबाइरा बड़े गुनाहों माँ जो तुम हौना तुम मना किए जाते हो कबाई रॉ मोटा रहेगा। कबाइरा। हाँ जी, बड़े गुनाह से माँ जो तुम हौना तुम मना किए जाते हो अनहु उनसे नुकफ़िर हम दूर कर देंगे अंकुम तुमसे सय्यिआतिकुम नुकफ़िर फिर नहीं होगा, फिर नहीं फिर। फिर हम दूर कर देंगे अंकुम तुमसे सय्यिआतिकुम तुम्हारी हुँ, बुराइयां वनुदखिलकुम और हम दाखिल करेंगे तुमको मुदखालन जगह करीमा इज्जत की। और जो खालन नहीं है। मुदखालन, हाँ जी मुदखालन जगह करीमा इज्जत की। हुँ, जी ठीक है। वमन और जो कोई जुल्म ज्यादती से तो ऐसे। जे देखे कफ़िर जे कफ़ारे से है, हम कहते हैं ना कफ़ारा देते हाँ हैं वो जी है। सिस्टर, हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। और जो कोई जुल्म ज्यादती से ऐसे गुनाह के काम करेगा तो अनकरीब हम उसे आग में डाल देंगे और अल्लाह पर ये बहुत आसान है। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचो जो जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और हम तुम्हें इज्जत की जगह सिस्टर जी थोड़ा सा अच्छा जे बचने के लिए उर्दू का लफ़्ज़ मुझे दें जहाँ से तुम बचो। ये जो है ना हाँ इसमें जी बचने का मुझे दें उर्दू का लफ़्ज़। जी क्या बचो, क्या 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 है मतलब उर्दू का लफ़्ज़ बचने इन के बड़े लिए गुनाहों इसमें? से बचो। बचो ही कहते हैं सिस्टर, बचो परहेज करो। परहेज करो। इज्तिनाब है ना? हाँ जी। हाँ जी नहीं, इज्तनाब। इज्तिनाब भी है ना? हाँ जी इज्तिनाब इज्तनाब भी करना, सिस्टर, हाँ परहेज़ जी इज्तनाब करना, करो। बचना। अच्छा। हाँ जी इज्तिनाब हम इस्तेमाल करने तो वो ही है, इसी से है। अच्छा जी इज्तनाब। इज्तिनाब उसी से है। हम्म।
ठीक है हमारी उर्दू मिलती जुलती जुबान है ना, हाँ जी जी तो इज्तनाब करना हम भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में लफ्ज ना। जी सिस्टर सिस्टर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, वो ऊपर आया हुआ ब्लैक ठीक है मुझे। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। एक मिनट, अब है हाँ जी, और तुम्हें हाँ जी इज्जत की ठीक जगह है। में दाखिल करेंगे। बस ठीक सिस्टर, हो गया। हम्म, अल्लाह सुब्हाना ताला देख के मैं बाद में हम करते हैं इसको थोड़ा सा, लेकिन अभी इसको पूरा कर लें, पढ़ा जाए पूरा को। जी आगे तस्नीम बहन आप पढ़ेंगे प्लीज। तस्नीम बहन आप पढ़ें। तस्नीम बहन आप पढ़ेंगे। तबस्सुम बहन पढ़ेंगी, पढ़ना चाहेंगे कुरान। कोई नहीं बोला, ठीक है इंशाल्लाह। तस्नीम बहन आप आए हुए हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे। नहीं, स्टेबल तो है मेरा। आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी बाजी सुनाई दे रही है, अच्छा वैसे नहीं वो बोलना चाहते, ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलो जो भी बहन पढ़ना चाहती है इनको पढ़ लें, फिर इसको रुकू तक पूरा करें इंशाल्लाह। आईपैड से कौन बहन है? सरैया बहन। राफिया होगी बाजी। मजीदा बहन आप पढ़े। अच्छा मजीदा बहन आप पढ़े इसको आगे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ततमन्नौ मा फदलुल्लाहि बिही बादकुम अला बाद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसा फद्दलल्लाहु फद्दा मा मा फद्दलल्लाहु। नहीं आप ये इसीलिए पता नहीं चल रहा आप लोगों को। हाँ जी फद्दलल्लाहु बाजी मैं पढ़े। बाजी मुझे समझ नहीं आ रही बाजी, शुरू से पढ़ूं बाजी। आपने फद्दलल्लाहु कहा है, फद्दा फद्दा फद्दलल्लाहु है, बाजी मैं शुरू से पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे तशदीद है पढ़े इसके हाँ ऊपर। जी वला हम्म, ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू आपका दौद जो है ठीक जगह से निकलता। फद बा बिही बाद। दौद आपका जो है ये ठीक जगह से नहीं निकलता। अच्छा बाजी बा अपना फील बा करें कि आपकी जुबान लग कहाँ रही है। बाजी जब आप दौद कह रहे हैं तो कहाँ जुबान जा रही है? बाद बा बाद। बाद दौद बाजी कहाँ से है? बाजी मेरी ना दोस्त इसको बाद बाद आप कह रहे हैं, दाल कह रही हैं इसको। बाद बाद इसको ठीक आपने करना है, अच्छा आगे पढ़े। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन सीन वस्अलुल्लाह नहीं है, सौद है। नसीबुम मिम्मत वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन वस्अलुल्लाह मिन मक्तसबन फदली वस्अलुल्लाह मिन फदली इन्नल्लाहा काना बिकुल्ली शैइन अलीमा। फदली। सॉरी बाजी बिकुल्ली सख्ती से है ना। बिकुल्ली 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 शैइन अलीमा। बिकुल्ली शैइन अलीमा। हम्म, हम्म,
तशदीद के लिए पूरा टाइम देते हैं। अच्छा बच्ची। हम्म। वला और ना तमन्नाओ, तुम तमन्ना करो माँ जो फद्दलल्लाहु फजीलत दी अल्लाह ने भी ही उसके साथ बादकुम तुम्हारा बाद अला पर बादिन बाद जिल्ली जाली मर्दों के लिए अभी भी आपका दाद दाल ही है। अच्छा जी। मैं करूँगी प्रैक्टिस समझ। इसको दाद जो है इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी अच्छा जी। जुबान जो है उसको ले जाएं ऊपर, 5 दाढ़ों के साथ जोड़ बच के मैं लगाती रखें। हूँ साइड जब आप जज्म के अच्छा बाद बाद ऐसे अद फिर होगा, बाद नहीं होगा, अच्छा दाल जी। नहीं आएगा। अद अद आप दाल के अद मखरज के ऊपर लेके जाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन जाते हैं। अच्छा आवाज में जी। आपके दाल की आवाज आ रही, पता नहीं क्यों। ठीक है बच मैं प्रैक्टिस करूँगी बच। ठीक है, आगे। लिरिजाली मर्दों के लिए नसीबुम हिस्सा मिम्मा इससे जो अक्तसबु उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई और अक औरतों अक होगा, इक तसबुज अक एक होगा, क्या होगा? एक इक एक तसबु होगा ना। हाँ जी बच सॉरी एक तसबु हम्म, उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई हम्म। और औरतों के लिए नसीबुम ये कसब से है, कसबा ना। हाँ जी कसब से हाँ जी नसीबुम हिस्सा मिम्मा इससे जो एक तसबना उन्होंने कमाया, वसलू वसलुल्लाह और सवाल करो अल्लाह से मिन फदलिही उसका फजल इन्ना बेशक अल्लाह काना है बिकुल्ली साथ हर शयन चीज हलीमन जानने वाला। और जिस चीज आइन का लेना, अलीमन 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 पढ़ेंगे ना तो हमजा आ रहा है अलीमन आ, में। बहुत आ, आसानी से पढ़ेंगे तो आ, अलीमन है, आ, यानी आ, कि अलीमन जज्म बस ये आइन नहीं है, हमजा है। तो वो क्या है मतलब उसका? दर्दनाद है ना। जी आ अलीमन। अलीमन। ठीक। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम्हारे बात को बात पर फजीलत दी है तुम इसकी तमन्ना ना करो, जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया उनके मुताबिक उनका हिस्सा है, और अल्लाह से इसका फजल मांगते रहो, फजलो करम मांगते रहो, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। बस बाजी। बेशक अस्सलाम बेशक वालेकुम बाजी। इंशाल्लाह। तो ये देखे कसबू, एक तसबू और एक तसबन, यानी कि जे औरतों के लिए एक तसबना है ना। हाँ जी सही जहाँ पे औरतों के लिए औरतों के लिए जी हाँ आया जी है ना, नून। जी जहाँ पे वाव अलिफ का इजाफा हुआ है, हल्की है, आया है ना। जी नून को जहाँ पे गिरा दिया गया है, जी जहाँ पे औरतों के लिए, हमने पढ़ा था नूने निसा, हाँ जी पढ़ा था कि नहीं? हाँ जी बाजी हाँ जी हाँ नूने जी निसा, हाँ वो जी ये वही है, नूने निसा आया जहाँ जी पे। ठीक है। औरतों के लिए हाँ जी अस्सलाम ओके, वालेकुम बाजी। रिफत बहन आप पढ़े। जी बाजी। बाजी वालेकुम सलाम कहाँ से? रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्नीम सॉरी बहन बाजी आप, मैं हम आवाजें दे रहे थे। बाजी पता की ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ठीक है, ਬਹੁਤ ਦੂਰ पढ़े ਆਈ आगे। मैं पढ़ूं बाजी को, बाजी तस्लीम पढ़ेंगे? बाजी मैं अच्छा, ਦੱਸ ਦੋ कोई कहाँ बात से नहीं, आप पढ़ना? ये पढ़ लें। मैं पढ़ लूं? एक ही आयत रहती है ये बाजी बस आखिरी आयत रुकू तक पहुंचने की। हाँ जी जी हाँ जी। मैं शुरू से बाजी फिर पढ़ लूंगी, ठीक है? मैं पढ़ूँ जरूर, देखूँ पढ़े फिर देर बाद बहुत तस्नीम पढ़ूँ। बहन। अच्छा ठीक है, बाजी ठीक है, कहाँ से बाजी पढ़ रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है। जो बहन भी पढ़ना। इथों ये वाली कुल आखिरी जो सामने आपके नजर आ रहा है ना, रुकू से पहली आयत वो है। जो सामने आए थे ना फोन पर वही है हाँ जी हाँ है वाली बाजी वाली कुली जानो। अच्छा, बाजी आप आपने पढ़े फिर मैं पढ़ लूं बाजी? हाँ जी
आप पढ़ेंगे हाँ, फिर पढ़ मुझे लें भी पढ़ पता लें। चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाहा आकादत काना है, आका अ- आइन अ- आकादत। अक़दत अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम का मोटा नसीबहुम। रहेगा ना, आकादत। ये बात दोबारा पढ़ूं? नहीं, वो बाजी कह रहे क्या काफ मोटा होगा ना आकदत का। अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम वल्लज़ीना से पढ़े। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाहा काना अला अला कुल्ली शैइन शहीद वालिकुल्ली आपने पढ़ा शही इन नहीं, शही शैइन शैइन इन शहीदा। शैइन शहीद शहीदा पढ़ेंगे। शहीदा। हाँ इख्फा जी, करें ना, इख्फा हाँ करें। हाँ जी, शैइन शहीइन शहीदा शहीदा। शैइन शहीदा। नहीं, आप कहते हैं इन लंबा करके फिर भी इन कर देते हैं, नून पढ़ते हैं, नून को आपने हाइड करना है, इख्फा करना है शैइन इसके ऊपर, शहीदा। यानी कि लगाना नहीं है, नून के मखरज के ऊपर नहीं जाना। हाँ जी, जाते हैं पर चलो इसकी प्रैक्टिस करें आप। इन इन नहीं है, नून शैइन को जाहिर शैइन नहीं करना शहीदा। तनवीन के को, ठीक है। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। शैइन जो है इख्फे के लिए आपकी जुबान जी मुअल्लक रहेगी, नून के मखरज पर नहीं जाएगी। यूं ही आप नून के मखरज पर लंबा करने के बाद जाते हैं तो क्या होता है, नून की आवाज आ जाती है, तो वो जी तो इजहार के लिए आवाज आती है ना, जी तो वो गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है। इसको प्रैक्टिस करें, आप कुरान को सुने तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला थोड़ा सा खुलासा देख लेते हैं इसका तफसीर का। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को मुखातब हो रहा है ना, जहाँ पे हमने जब शुरू किया था जी तो ईमान वालों को मुखातब अल्लाह ताला ने फरमाया था ना। जी रुकू जब शुरू हुआ था, रुकू पे जाते हैं। ये है जुरीद, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मामलात बिल्कुल खोलकर बयान कर दिए हैं, और तुमने तरीका किनका इख्तियार करना है, तुमसे पहले जो नेक लोग गुजर चुके हैं उनका तरीका इख्तियार करना है, और तुम्हारी तौबा कबूल अल्लाह ताला करेगा, और खूब इल्म वाला हिकमत वाला है, यानी कि अल्लाह को पता है तुम्हारा इरादा क्या है। जी ठीक है, अल्लाह को पता है तुम्हारा इरादा क्या है, क्योंकि अगर पीछे जाएं तो वही बात चली आ रही है ना। अभी जी ये देखें, औरतों की बात हो रही थी ना, जी जी तो आगे आगे ये मुकम्मल नहीं हुई है, ये पीछे से अगर आप जाएं तो वो आप इसका लिंक करेंगे, क्योंकि ये जहां से अल्लाह चाहता है आ गया है, तो वो पीछे से बात हो रही थी कोई, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला अब साफ तौर पर बता रहे हैं कि अल्लाह क्या चाहता है तुमसे, ठीक है। जी ये देखिए, ये सारा पीछे जो है आयत नंबर 25 जो है, लंबी है ना, जी जी लंबी आयत है, जी तो इसी का ही लिंक है। और तुम में से जो कोई आजाद मोमिन औरतों से निकाह की ताकत ना रखे तो वो तुम्हारी मिल्कियत में मौजूदा मोमिन लौंडियों में से किसी लौंडी से निकाह कर ले, और तो अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है, यानी कि अल्लाह को पता है तुम्हारे दिलों में क्या है और तुम्हारा ईमान कितना कामिल है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, यानी तुम सब मुसलमान ही हो, कोई लौंडी गुलाम जा आका में फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमान होना ही उसका फ़र्क मिटा देता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि लौंडियों से भी निकाह कर लोगे तो तुम एक जैसे ही हो।
कोई तुम अफजल नहीं हो लौंडियों से। तो जब निकाह करो तो लिहाजा उन लौंडियों के मालिकों की इजाजत से निकाह कर लो। क्यों? क्योंकि अगर इजाजत से नहीं करेंगे तो जिसकी मलकियत होगी झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो जी अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं और दो उनको क्या उनके दस्तूर के मुताबिक क्या देते हैं मेहर, मेहर। हाँ जी बशर्ते के वो निकाह में लाई गई हूँ बदकारी करने वाली ना हूँ, यानी कि निकाह में लाने के लिए उनके उनसे करे को जब वो मुहसिन क्या होती हैं हिसान में किसी के हिसान में औरत हो हा साद और नून है इसका रूट वर्ड। ठीक है, ये एहसान नहीं है, ये हिसान है, हा साद नून हम्म, हसन। किसी की अंडर आना, किसी की हिफाजत में आ जाना, चार दीवारी के अंदर आ जाना। तो जो औरत निकाह में आती है क्या आती है, क्या होता है, चार वही। दीवारी के अंदर आ जाती है ना, जी लेकिन निकाह में आकर वो महफूज हो जाती। हाँ जी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बिदकारी करने वाली वो लौंडियां ना हो जनी के जगह जगह पे वो गलत काम करती फिरें और उनसे निकाह कर लो तो तुम भी उस गलत काम में लोग उंगली उठाएंगे ना। ये जी देखो फलां बदकारी करने वाली से निकाह कर लिया तो औलादें भी फिर ऐसे ही इंसान की नस्लें तबाह हो जाती हैं अगर गलत औरत से शादी कर ले तो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और ना पीछे छुपे ना छुपे यार बनाने वाली हूँ, यानी कि वो जे ना अखदान यानी कि जो मर्द औरत की गलत दोस्ती है उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है। ऐसे ना हो कि उन्होंने छुपे जार बना रखे हूँ, छुपी दोस्तियां हूँ, छुपी आशनाई करने वाली औरतें ना हूँ। फिर अगर वो निकाह में आकर बेहयाई का इर्तिकाब करें, यानी कि अगर निकाह में आ जाती हैं और फिर ये ऐसा काम करती हैं, तो जो सज़ा आज़ाद औरतों की है, उसमें से आधी उनको दी जाएगी। क्या? अदी आधी, क्योंकि हक़ महर कितना था उनका? आधा। अब अदा सज़ा कितनी है? आधी ही। अदी इनके कोड़े भी आधे हैं ज़िना पर। ठीक है? ये सहूलत तुम में से उसके लिए है जिसे गुनाह ज़िना में पड़ने का जब मुब्तला होने का अंदेशा हो। क्यों? क्योंकि कोई गुनाह से बचने के लिए यानी कि ज़िना करने से बचने के लिए वो लौंडी से ही निकाह कर ले ताकि वो अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सके और गुनाह से बच सके। अल्लाह सुब्हाना तआला के कहर व गज़ब का शिकार ना हो इंसान। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये कि तुम सब्र करो, यानी कि फिर सब्र का भी तलकीन की गई इंसानों को। तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी कि अगर तुम्हें नहीं है सहूलत मौजूद, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम निकाह की ताकत रखो, तो फिर सब्र करो। क्यों? क्योंकि सब्र जो है तुम्हें जाहिर है कि गलत काम से रोके रखेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए फिर बेहतर है अगर तुम सब्र करो तो। अल्लाह सुब्हाना व तआला सीधा रास्ता बताता है और जायज़ निकालता है रास्ते, गलत अल्लाह सुब्हाना व तआला गलत से रोकता है। तो जहाँ पे यही एक मर्द के लिए सहूलत मौजूद की गई है कि अगर वो नहीं गुनाह में पड़ जाने का उसे इतना अंदेशा हो कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो किसी से जिना कर बैठेगा तो फिर उसे क्या करना चाहिए। तो आज इस ज़माने में नहीं है मौजूद लौंडियाँ तो क्या किया जाए फिर? वो ऐसा इंसान क्या करे जो निकाह की ताकत नहीं रखता किसी औरत से जिसको वो ज़्यादा हक़ महर दे सके तो क्या करेगा फिर? किसी गरीब की किसी गरीब बेटी के। से हाँ शादी जी कर सकता है ना? जी किसी बिल्कुल ज़रूरतमंद गरीब की बेटी से शादी कर कर सकता है, सकता है। हाँ, जो कि खुद देने देने के काबिल नहीं होंगे तो वो वो भी इतना नहीं देने। माँगेंगे हाँ भी जी नहीं। जी हैं? जी वो माँगेंगे भी नहीं, वो बेचारे फिर खुद ही खामोश हो जाते हैं कि जब हम नहीं दे सकते तो फिर माँगते भी नहीं हैं। तो फिर उनसे कर लिया जाए, जहाँ फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने जवान नौजवान लड़कों को वो खिताब करके फरमाया था कि जवानों की जमात यानी शबाब अहले शबाब
कि तुम निकाह कर लो, निकाह की ताकत नहीं रखते तो क्या करो, फिर रोजे रखो। तुम में से जो निकाह की ताकत रखता हो निकाह कर ले, अगर नहीं ताकत रखते तो ये सारे अहकामात जानने के बाद अगर लौंडी से भी नहीं तो फिर क्या करो, रोजे रखो, क्योंकि रोजा जो है वो शहवत को मारता है। ठीक है, तो अगर जब तक बच्चों की शादी नहीं होती वो रोजे फिर रखें, अगर वो रख सकते हो तो वो उनके लिए बेहतर है, उनकी शहवात को काबू में लाने के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी नस्लों को बाजी मैं कहाँ बचाए। से पढ़ूं अब? अब हमने पढ़ लिया है जहाँ पे हम तफसीर कर रहे हैं, बाजी तो मर गया तो मेरा इंशाल्लाह सुन फिर लो, मैं सही। इतनी देर बाद पढ़ना है ना। ठीक है जे इसी रुकू से ही, जे जहाँ से रुकू शुरू होता है वहाँ की आयत पढ़ लें आप। अच्छा, पीछे से है ना? जे जहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना 26 ये रुकू है ना, खत्म होता हाँ तो जी, जहाँ हाँ से जी, शुरू करें, ठीक है बाजी। युरीदुल्लाहु। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिर युरीदुल रहमा। रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियाकुम सुनानल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु। वल्लाहु अलीमुन हकीम। बाजी आगे पिछली भी वाली के भी पढ़ लें, जी सिर्फ बाजी। यही पढ़ ले, हाँ आगे जी, वाली पढ़ ले, अरबी हाँ ही पढ़ ले। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना यत्तबिऊना शहवाति अन तमीलु मीला मीलन मैलन। अज़ीमा मी- मीलन मैलन अजीमा। मीलन अज़ीमा। बाजी अजीमा। अजीमा। पिछली वीक के मैं माँ, नॉवेल माँ शुरू को किया लंबा था। करे ना, माँ लंबा, हाँ जी। माँ को आ- लंबा करे। अजीमा। माँ। अजीमा। अजीमा, अजीमा। क्योंकि जब मद लेटर है तो मद हाँ लेटर को जी, दो अलिफ के बराबर, दो ठीक हरकत है के बाजी, बराबर खींच के छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह बाजी। ताला तो ये आपका हो गया। यानी कि उर्दू तर्जमा तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ आपके लिए, और हाँ जी। बहनों ने भी किया, लेकिन आ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बाजी मैं सुब्हाना सॉरी, ताला हमारे मैंने लिए पता नहीं आसानी सी पैदा कितने बजे करे। शुरू करना। पिछली वीक के मैंने 9 बजे शुरू किया सी, तो आप मेरा ख्याल सब पढ़ हटी थी। नहीं, नहीं, पिछली पिछली वीक वीक क्लास नहीं हुई नहीं पढ़ा ना, ही नहीं शुरू था नहीं, हमने। क्लास अच्छा, नहीं क्लास थी। हुई नहीं थी तो पिछली वीक। मैं अपनी बेटी के पास आई हूँ, तो अच्छा जी। नहीं, जहाँ 4 बजे। बड़ी तस्नीम क्लास नहीं हुई थी पिछली वीक। अच्छा, हाँ जी, अच्छा नहीं हुई थी। नहीं हुई मैंने थी। कहा कि पढ़ लिया, देर नहीं, बाद बाजी क्लास हुई पाकिस्तान में थी, है है ना? ना, बाजी कहीं गए हुए थे, वहां पर इंटरनेट नहीं था ना, बाद क्लास नहीं अच्छा हुई। अच्छा, हाँ जी। तो मेरी बेटी को मुझे चाहिए था, उसके लड़के ने लंदन आना था, मैं मजबूरी के लिए यहाँ आई। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप इंशाल्लाह ताला हाँ जी। पढ़ लिया अब अपना आपने। सबक नाल ले आई थी। मैं ठीक कहा है मेरा बात। इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये जहाँ पे फिर देखें कि इसी सहूलत से आगे बढ़ते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए जो मामला तो खोल कर बयान कर दे, यानी कि झोल ना रहे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो गलती में ये काम कर दिया। अल्लाह ताला चाहता है कि बिल्कुल तुम्हें पता चल जाए या मुसलमानों के करना क्या है, करने वाले काम क्या है ना। क्योंकि जब तक हाँ, पता नहीं होता तो इंसान गुनाह में मुलव्वस हो जाए तो फिर ये कहता है ना कि मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। जी। मैंने हाँ जी। तो जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था। अब अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें पता चल जाए, कितना क्लियर कट है जहाँ पे अल्लाह ताला जो बता रहे हैं, अहकामात है ना ये। जी। जी,
ना। तो जी ये फिर जब गुनाह से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर निकाह करना कितना ज़रूरी है और कितना जल्दी करना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना? जी जल्दी ज़रूरत जल्दी करने की है। हम क्या करते हैं, लंबे-लंबे अरसे तक बच्चे-बच्चियाँ जवान हो रहे हुए होते हैं और उनकी निकाह नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो अभी कमाने के काबिल नहीं हुए, और लड़कियां भी जो हैं वो अभी पढ़ रही हैं, अभी तो उनकी नौकरी लगनी है, फिर ये वो करते करते वो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला जहाँ पे बता रहे हैं कि करने वाले काम क्या है। अगर ज्यादा अमीर, अब क्या होता है कि जो गरीब है ना वो भी कहता है हम मुझसे ज्यादा अमीर से ही शादी हो जाए, ऐसा ही है ना। तो गरीब से भी शादी अमीर की भी हो जाए तो वो भी क्या करते हैं, फिर उसको सारी उम्र जीने नहीं देते औरत को। हमारा माशरा बहुत खराब हो चुका है। जी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ये बता रहे हैं कि बांदियां जो हैं उनमें भी उनके साथ भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी कि क्योंकि वो किसी की गुलाम होंगी ना, तो फिर क्या होगा, उसको उसके मालिक से मालिक से इजाजत पूछ कर इजाजत लेकर इजाजत उनकी लेकर शादी करना की पड़ेगा। जाए उनसे। तो गैर शादीशुदा जो हैं, आजाद मर्द व औरत से अगर जिना का सदूर हो जाए, जिना कार बैठे हो, हमें मैंने बताया था ना कि इंशाल्लाह आगे भी आएंगे कि जब शादीशुदा मर्द और औरत जिना करते हैं, मर्द या औरत, तो उनको क्या सजा है उनकी? डबल शादीशुदा मर्द और औरत के जिना करने की क्या सजा डबल है? डबल सजा है डबल उनकी। रजम करना। याद हाँ जी रखें ये बात, रज्जम, हाँ जी रज्जम हाँ करना। रजम करना। शादीशुदा मर्द और औरत की सजा क्या है? जिना करने रज- की रजम करके रज्जम करना, हलाक कर देना, पत्थर रज्जम कर मार के पत्थर हलाक मार कर मार कर देना, हलाक करना। हाँ जी पत्थर मार मार कर हलाक कर देना। रजम उसे ना मिनश शैतानिर रजीम, जिसको जो रजम किया गया, जिसको दूर किया गया, अल्लाह दूर ताला ने किया गया। अपनी हाँ जी रहमत से भी दूर कर दिया। तो फिर अगर मर्द और औरत शादीशुदा नहीं थे, अगर उन्होंने जिना कर लिया, तो क्या है, फिर उनको कितने कोड़े हम्म, लगेंगे? 100 तो कोड़े, 100 कोड़े 25 लगेंगे। 100 कोड़े। 100 कोड़े लगेंगे, 100 कोड़े दोनों को लगेंगे। हाँ जी अगर उन्होंने रजामंदी से वाहम किया है तो दो 100 कोड़े लगेंगे। लेकिन अगर औरत की रजामंदी नहीं थी, मर्द ने जबरदस्ती उससे जिना किया, तो कोड़े किसको लगेंगे? मर्द को। मर्द को। मर्द को। मर्द को कोड़े लगेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत इंसाफ करते हैं। जी तो ये अगर औरत को किसी ने जबरदस्ती रेप कर दिया, तो क्या वो उसको अपनी जान दे देनी चाहिए? नहीं नहीं, क्योंकि नहीं, अपनी खुदकशी खुदकशी तो करने गुनाह वाला है कहाँ, हाँ जी, गुनाह है हाँ खुदकुशी जी। तो गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाली है। गुनाह है हाँ जी। खुदकुशी तो बहुत बड़ा गुनाह है, हाँ जो जी कि खुदकश जो है उसके लिए यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला के फैसले का इंतजार ही नहीं किया उसने, खुद ही जी अपनी जान ले ली। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरे मैं इंतजार नहीं किया कि इसकी मैं हम्म, जान निकाल लूं, लेकिन अल्लाह पर इसका भरोसा नहीं था वक्त उसको। ना। हाँ जी कि अल्लाह तो इंसाफ करेगा मेरे ये साथ। हाँ जी फिर एक दफा डॉक्टर फरत हाशमी भी बता रही थी कि अगर किसी का रेप हो जाता है क्योंकि उसकी मर्जी नहीं थी, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जान दे दे, या फिर ये है क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला उससे नहीं पूछेंगे रोज़े क़यामत क्यों क्यों हुआ, क्योंकि अगर उसकी रज़ा है, उसने खुद वो ताने-बाने बुने हों या वो रास्ता दिया हो मर्द को वहाँ तक पहुँचने का, तो फिर तो वो कसूरवार होगी साथ में। अगर उसने ऐसे काम किए हैं जो कि मर्द को बहलाने वाले, उसको फिसलाने वाले थे, तो फिर वो शामिल हाल होगी। शामिल गुनाह होगी। लेकिन अगर उसका कोई गुनाह नहीं था, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसका गुनाह था उसे ही पकड़ेंगे, बेगुनाह को नहीं पकड़ेंगे। ना तो जिना से बचने के लिए खुदकुशी की जा सकती है और ना ही जिना के बाद की जा सकती है। खुदकुशी कभी भी नहीं की जा सकती। क्यों?
कितना भी इंसान तंग आ जाए जिंदगी से, लेकिन खुदकशी हराम है। जी तो और फिर खुदकश जो है वो क्यामत वाले दिन भी जिस आले से, जिस औजार से उसने खुदकशी की होगी, वो करता रहेगा, उसको वो दोहराता रहेगा उसको, यानी कि वो ऐसे ही करता रहेगा। जिस औजार से उसने खुदकशी की, वो करता रहेगा बार बार वही, बार बार दोहराएगा, बार बार वो, क्योंकि कभी सजा जहन्नम की भी खत्म नहीं होने वाली ना। जी तो वो उसको कत्ल जो है कातिल, जो खुद उसने खुदकशी की है उसको निकाला भी नहीं जाएगा जहन्नम से। वल्लाहु आलम। अल्लाह सुब्हान व तआला हदायत अता फरमाए हम सबको, और अल्लाह अपने रहम करम की बारिशें ही रखे हम पर, हिफ्ज़ो ईमान में ही रखे अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बहुओं बेटियों को, औरतों को, लड़कियों को भी आमीन और मर्दों को भी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। निगाहें नीची जो हैं, अल्लाह ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया, निगाह नीची औरत नहीं करेगी, वो बाहर देखेगी, मर्द नहीं करेगा, औरतों पर नजर पड़ेगी, तो वो रास्ता कौन सा है, कौन सी रोड चला वो इंसान। क्योंकि शर्मगाह तो जहाँ तकमील करती है, जहाँ उसका इनकार कर देती है, यानी जहाँ वो काम पूरा कर देती है जो उसका इरादा होता है करने का, जहाँ फिर उसका इनकार कर देती है। अब रास्ता उसने खुद इख्तियार किया है, रास्ता वो खुद चला है, जा चली है। तो अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको हदायत अता फरमाए, क्योंकि हम सूरत नूर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके कि जिना की सजाएं क्या हैं। ठीक है, जिना करने वाले शादीशुदा, जहाँ किसी पर जिना का इल्जाम लगाया हो गया हो, तो किसी भोली भाली पाक दामन औरत पर शादी जिना का इल्जाम लगा दिया जाए, तो बहुत बड़ी सजा है उसकी। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको हिदायत अता फरमा। तो ये फिर ये है कि ये चारों इमामों का मजहब यही है कि उसको जिना करने, शादीशुदा जिना करने वाले जानी मर्द और औरत को पत्थर मार कर ही हलाक किया जाएगा, यानी कि यही है उनका। तो ये फिर जो गुलाम जा बांदी है, खा शादीशुदा हूँ खा कंवारे हूँ, अगर उनसे जिना सरजद हो जाए तो उनकी सजा 50 कोड़े हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो 100 की बजाय 50 है। बांदियों का हुक्म तो इंशाल्लाह ताला हम फिर जहाँ पे अल्लाह ताला ने बता ही दिया है। तो ये फिर ये है कि जिसको डर हो कि वो जिना में पड़ जाएगा, तो अपने नफ्सों को पाक करने के लिए वो क्या करेंगे, रोजे रखें। रोजे वो रखें, रोजे अपने रखें। नफ्सों को पाक करने के लिए, पाक रखने के लिए वो बांदियों से निकाह कर लेंगे, या फिर कम जिस औरत की कोई डिमांड ना हो उससे निकाह कर लेंगे। तो फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने इसी आयत के फिर क्या फरमाया इख्तिताम पर कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, यानी कि जो पहले हो चुका वो हो चुका, और जो उससे उसकी गुनाह की माफी मांगी जाए, और जितना बच सके उससे बचा जाए गुनाह से। तो अप एंड डाउन थोड़ा बहुत जो हो जाए, इंसान अपनी पूरी कोशिश करे, और अगर फिर कुछ हो जाता है तो वो अल्लाह सुब्हान व तआला फिर गफूर रहीम है। लेकिन ये नहीं है कि जिना कर ले और फिर कहे कि अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि बांदियों से निकाह करना मकरूह है, अगर उससे कराहत पर अमल करोगे तब भी अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, और वो रहम वाला भी है, क्योंकि उसने बांदियों से निकाह की इजाजत दे दी है। ठीक है, और उसको ममनू करार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तस्बिरु व खैरुल लकुम, कहाँ है, व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, कि अगर तुम सब्र कर जाओ तो फिर क्या होगा, अगर तुम अपने दामन को पाक रखो तो अल्लाह गफूर रहीम है। तो दामन को पाक रखना बहुत जरूरी है, अगर फिर नहीं रख सकते ये तो तुम्हारे फिर लिए क्या है,
इस आयत की तफसीर में यही है कि वे गुलाम और बांदी का जिक्र आया है तो इनसे शरई गुलाम या बांदी मुराद है, जो काफिर मर्द व औरत जहाद के मौके पर कैद कर लिए जाते थे और अमीरुल मुमिनीन उनको मुजाहिदीन में तकसीम कर देता था। ये कैदी गुलाम फिर जब बांदियां बन जाते थे। कैसे? क्योंकि जंगों में आते थे, फिर उनकी नस्ल भी गुलाम रहती थी। ठीक है, अगर गुलाम हो जाती बांदी या गुलाम बाप होता बच्चों का, तो वो भी फिर नस्लों तक जी आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरा ख्याल चली गई उनकी। आप चली गई हमारे। दूसरी अपनी बाजी रजिया में मेरा ख्याल वो नहीं आवाज आई सुनी। बज रजी पढ़ा आए सी उन्होंने, हाँ जी, बज पढ़ा था अच्छा उन्होंने। पढ़िया सी। अच्छा बज रजी आए हुए हैं हम लोग। मैं पता नहीं लेट है, ज्वाइन किया ना। पता नहीं आए हैं अभी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद आवाज सुनी आज। हाँ जी, बाकी आप आए ही नहीं की। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आज भी अभी मैंने खोला फोन देखा तो कुछ मतलब 9 बजे कुछ मिनट पे मैसेज आया हुआ था। हाँ नहीं, जे वेडनेसडे को होती है ना 9 o'clock। अच्छा अच्छा 9 हाँ जी, 9 o'clock हो गया बाजी। एक कौन से 10 बजे? 9 o'clock शुरू होती है ना, 10 अच्छा बज के। अब तो 10 o'clock अच्छा होगा ना, 10 past 10 मेरे ख्याल को, अच्छा 5 past 10 कुछ। बाजी की आवाज भी चली गई, सब कुछ चला गया, कहाँ स्क्रीन भी गई चली है? गई। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो मैं रही आदी है। बेटी को ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਕੰਮ ਤੇ। सॉरी ਉਹ बज ਕਹਿੰਦੀ तस्नीम, ਅੰਮੀ रिकॉर्डिंग ਤੂੰ हो ਮੇਰੇ रही है। ਕੋਲ बज तस्नीम, अच्छा सॉरी बज तस्नीम रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लास खत्म हो गई है। पता नहीं बाजी चले, पता नहीं बाजी की आवाज चली है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है। प्लीज ख्याल से बोलें। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला जहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वो ना कनेक्शन टूट गया था रिकॉर्डिंग बंद जिसकी कर दी बाजी। रिकॉर्डिंग। बाजी कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको अच्छा करते बाजी हैं। कर रहे हैं ना अभी। हाँ अच्छा जी, ठीक है। आपको शेयरिंग आ रही है? नहीं नहीं बाजी, ठीक बाजी है, सब कुछ चला शेयरिंग गया था ना, जब आपकी आवाज पहले गई फिर बाद में शेयरिंग भी चली अब गई। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, हम बातें रिकॉर्डिंग कर रहे तब थे। बंद हो गई थी लेकिन अब हो रही है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हम अब जहाँ आ पे गया थे बाजी, अब आ कि गया बाजी। हाँ जी, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं फिर उसी से ही, क्योंकि जब तक आपको पीछे से समझ नहीं आएगी तब तक ये जहाँ पे नहीं पता चलेगा कि क्या जी मामला है। ठीक है, जी, हाँ जी बाजी, तो हाँ जी। अब इसका लिंक बन गया है, रब्त बन गया है, तो हम इसको देखते हैं आगे। अल्लाह चाहता है, अल्लाह इरादा करता है कि बयान कर दे तुम्हारे मामला तुम्हारे लिए खोल कर, और तुम्हें पहले नेक लोगों के तरीकों पर चलाए। तो क्योंकि हम दुआ क्या मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, है ना, हाँ मांगते जी, हैं ना, हाँ जी, जी जी बाजी, हाँ जी, इनाम याफ्ता। जी, जिन पर इनाम किया गया। हाँ जी, जरा का फिर बात बाजी की चली। आवाज फिर चली, हमें लगता है। हाँ जी बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो बंद ही करने लगी हूँ, आवाज तो आ नहीं रही। टिफत आप हैं? हाँ जी। मैंने जा रही है ना, मैंने सोचा कि शायद आप तो नहीं चले गए। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। जी
ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬੈਸਟ ਅੱਲਾ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਹੋ। ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਬੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਇੱਕ ਸੋਚੀਏ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਏਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। अल्लाह ताला तो सब नुस्खे तंदुरुस्त दे, आमीन। अल्लाह ताला सबको तौफीक देगा, आमीन। कुरान पाक से अल्लाह जोड़ दे सबको। आमीन। कोडिंग हो रही है बाजी, लगता क्लास खत्म हो गई। पता ये नहीं, नहीं खत्म तो नहीं हुई बाजी, पता नहीं बंद ये तो नहीं की अच्छा ना ऑपरेशन बाजी, सी हो गया सी ठीक ठाक। रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना जी। रफिया दे कहंदे अखां दा ऑपरेशन है ना ठीक ठाक हो गया। राफिया दा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी ठीक हो गया। राफिया आंटी आपकी आंखों के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका ठीक हो गया था ऑपरेशन। हाँ जी अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आ गए बाजी आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। मैं माजरत खा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा हाँ है जी इस पे बाजी आज। बार बार जा रहा है ना हाँ जी। तो जे आप मुझे ये भी नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग जो है दोबारा आएगी जहाँ, कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि बाजी रिकॉर्डिंग हो रही इंशाल्लाह है हाँ जी। रिकॉर्डिंग अब फिर होने लगी है हाँ जी पहले जब आप इंशाल्लाह। तो जहाँ पे अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी ही तौबा भी अल्लाह कबूल करेगा, और जो है तो जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से फिर जिना करते हैं, जो भी चाहें करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनकी भी बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम हक से बहुत ज्यादा दूर हट जाओ। मुसलमानों को क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं हक से दूर चले जाएं। वो नहीं चाहते तुम्हारा फायदा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे हल्का कर दे, कौन सा क्या, जे जनी के जो बोझ है जे हल्का कर दे, ताकि तुम तकलीफ में ना पड़ो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया है, इसलिए कमजोरी इंसान के अंदर लाहिक है कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने ऊपर, तो वो गलत रास्तों पर चल पड़ता है। अगर कोई जैसे चोरी करता है तो क्या करता है, यही है ना, कि अपनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। अगर जरूरत थी तब भी, या नहीं जरूरत थी तो आदतन भी कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रखता, पाँव नहीं रखता, तो क्या होता है फिर जो चाहे करता है ना। जी तो लेकिन अगर गलत आता है इरादा दिल में और इंसान उसको छोड़ देता है, तो क्या होता है, अल्लाह के हुक्म से छोड़ देता है, तो अल्लाह सुब्हान ताला भी फिर उसकी मदद करते हैं, है ना। करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान कमजोर है, कमजोरी लाहिक है इंसान में। इंसान बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी फिसल जाता है, फिसल जाते हैं ना, क्या होता है। तो ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। अब ईमान वालों को आगे माल की बात बताई जा रही है कि माल को भी नाहक नहीं खाना। क्यों? ये अहकामात अल्लाह ताला ने हल्के किए, और फिर एक दूसरे के माल ना खाओ, यानी कि जे जो एक दूसरे के मामलात हैं उनमें जब इंसान पढ़ता है, खर्च करता है, तो एक दूसरे के हो जाता है ना अप एंड डाउन। कभी कहता है उसने मेरा माल खा लिया, है ना, क्या होता है वो, रिश्तेदारों के हकूक में भी एक दूसरे का माल खा जाते हैं, है ना। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने अब मालों की बात आ रही है, तो माल में भी, क्योंकि सूरत निसा जो है इसमें शुरू में तमाम इंसानों का एक माँ बाप से पैदा होना और सबका एक ही रिश्ता अखुवत में जकड़े रहना बयान अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, जी कि एक ही रिश्ते में तुमने जकड़े रहना है तमाम इंसानों ने। क्यों? क्योंकि एक ही माँ बाप की औलाद हो तुम, यानी कि आदम और हवा की औलाद हो, तो एक ही है रिश्ते तुम्हारे।
तो फिर अब क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी कि वहाँ पे एक रिश्ते में जकड़े रहने का वहाँ पे रहने का बयान करके अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तमाम इंसानों के आम इंसानों के हकूक की हिफाजत और उनकी अदायगी की तरफ भी अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया। फिर यतीम और औरतों का भी तफसीली बयान आ गया, फिर मिरास के अहकामात का भी बयान आ गया, फिर जिसमें यतीमों और औरतों के अलावा दूसरे रिश्तेदारों के भी हकूक अल्लाह ताला ने दिए, है ना? तो अब जी हकूक ना कोई अदा करेगा, दूसरों का माल फिर खाना ही है ना? जी ये सारे अब अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि एक दूसरे के माल ना खाओ। फिर यतीम औरतों के अलावा दूसरे रिश्तेदारों के हकूकों की अदायगी भी ताकीद से उस पर भी ताकीद फरमाई। तो इसके बाद फिर निकाह के अहकामात आए, है ना? अब उनको इकट्ठा जी किया जाए, सिर्फ आयत नंबर 29 हुई है और बहुत सारे अहकामात आ चुके हैं। जी ठीक है? फिर जी निकाह के अहकामात जब आए कि जी किस औरत से निकाह हलाल है, किससे हराम है, हराम है, हाँ क्योंकि जी निकाह एक ऐसा मामला और एक ऐसा मायदा है, दो इंसानों के दरमियान तय पाता कि जिससे औरत की जान और माल में तसर्रुफ करने का किसी को हक मिलता है। किसको? उसके शोहर को। जी वो फिर कर सकता है, माल और जान दोनों में। तो फिर ये है कि जब आम इंसानों की इन आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया आम इंसानों के जानो माल की हिफाजत और उनमें हर नाजायज तसर्रुफ करने की ममानत अल्लाह ताला ने कर दिया, मना फरमा दिया। जहाँ पे ये बयान है कि हर तरह के आम इंसानों के भी जानो माल की हिफाजत करनी है और उनमें हर तरह का नाजायज जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना। मना कर दिया अल्लाह ताला ने, ममानत कर दी है। खा वो इंसान मर्द हों या औरतें और अजीज रिश्तेदार हों या गैर, जहां तक कि मुसलमान या गैर मुस्लिम हों, जिनसे तुर्क जंग का कोई मायदा भी हो चुका हो, वो भी इसी में ही शामिल है। ठीक है? इतने सारे अहकामात देने के बाद अल्लाह ताला ने आम तौर पर इंसानों के हकूक हमारे सामने रखे हैं। ठीक है? तो होना चाहिए ना ऐसी बात फिर, जी होना चाहिए ना? क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना जहाँ पे कि पीछे से लिंक आता हुआ जहाँ पे अल्लाह ताला ने एक-एक चीज़ गिनवाने के बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि आपस में नाहक तरीके से एक दूसरे के माल ना खाओ। किसी का भी चाहे निकाह के ज़रिए हो, चाहे किसी तरीके से भी हो, तो नहीं करना है ऐसा ना। क्योंकि यतीम बच्चियों के औरतों के बारे में कहा ना अल्लाह ताला ने उधर कि उनसे निकाह मत करो। अगर उनके हक महर नहीं देते या उनके मालो दौलत की गर्ज से उनके से खाने की गर्ज से उनसे निकाह ना करो। तो सब कुछ जहाँ पे आम इंसानों के हकूक की अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी है खबर। आप लोग यहाँ पे ही हो ना? हाँ जी जी, हम जी बची हाँ यहाँ जी पे। सुन रहे हैं हम जी मुझे ऐसा बस लगा कि आप फिर नहीं नहीं कट नहीं गए सुन हैं। रहे बस जी, हैं हाँ हम जी सुन खामोश थे, रहे हम हैं आपको जी सुन रहे थे हम जी। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो इसका लिंक रखना है जी, क्योंकि अगर मैंने जी पूछा ना आपको तो पता होना चाहिए कि ठीक है क्यों ये बाजी। माल सिर्फ यही है नहीं है कि एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ, वो जमीनें जायदाद बांटने, ये नहीं है सिर्फ। सब कुछ इसमें आ जाता है जितना अब तक अल्लाह ताला ने गिनवाए हैं जी अहकामात और हकूक। जी हकूकुल इबाद जिन जिन बंदों के गिनवाए हैं वो सब में इसी में आ जाएंगे फिर, क्योंकि इसमें शरायत शरीयत की शरायत है ना। तो जी अगर शरीयत की शरायत के मुताबिक जे एक दूसरे के बाहमी रजामंदी करते हो, माले तिजारत करते हो और फिर आपस में एक दूसरे का माल खाते हो, क्योंकि जब तिजारत पे लगाते हैं तो क्या होगा, बांटेंगे ना उसको जी मुनाफे जी को, माल जी को। जी तो वो बाहमी रजामंदी है। किसी ने कोई कहे चलो कोई बात नहीं आपने इतना ले लिया मैंने इतना ले लिया, तो ये क्या है, बाहमी रजामंदी है। रजामंदी और अपने आप को कत्ल ना करो। फिर अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने बता दिया कि जनीन के अल्लाह ताला तो तुम पर मेहरबान है।
तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर आगे पहले तो पहले माल की बात हुई है, अब जान की भी बात हो गई कि अपनी जानों में भी तसर्रुफ नहीं करना, ना एक दूसरे की ना अपनी खुद की, ठीक है? जी जाने भी नहीं ले लेनी, ना एक दूसरे की ना अपनी खुद की, अपनी और तुम खुद एक दूसरे को कत्ल भी मत करना, ना? जानों में खुद भी नहीं और दूसरों को भी कत्ल नहीं करना, बल्कि बिलाशिबा अल्लाह ताला तुम पर बड़े मेहरबान है। इसलिए जरा भी सोचना भी मत कि किसी को नुकसान पहुंचाकर तकलीफ देकर, तो ये ऐसी सूरतों को अल्लाह ताला ने तमाम को मना कर दिया कि तकलीफ देकर माल कमाओ या तकलीफ किसी को नफ्स को दो, किसी तरह से भी कोई तकलीफ नहीं देनी। बिलखुसूस जब इसमें अक्सर अक्सरियत औरतों के बारे में ये अहकामात हो रहे हैं ना, जी जी जब इसमें ये असर हो के दूसरा शख्स फिर उसको जरूर पहुंचावेगा ना, फिर वो माल आगे पीछे देगा, तो फिर क्या होगा कि कई दफा होता है ना कि गलत काम करने के लिए माल लगाया जाता है ना। जी जिना करने वाला क्या करता है, कुछ ना कुछ देता है ना किसी को, जी जी ना? जी कोई फायदा उस औरत को भी होता है जो उसको अपने आप को हवाले कर देती है, नौजुबिल्ला। अल्लाह हिदायत अता फरमाए ना। आमीन तो किसी तरह का भी कोई इस तरह इस अल्लाह के अहकामात में दगाबाजी करना, अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है, यानी कि अगर हो चुका है तो माफी मांग लो, जी अल्लाह माफ फरमा देगा, लेकिन अकड़ के ना रहो कि फिर करते रहो। अल्लाह के जी अहकामात जानने जी के बाद जी बावजूद भी तुम करते रहो, ये नहीं करना। अगर किसी को धोखा देनी कर रहे हो, धोखा दे रही हो, माल हड़प कर रहे हो, तो तब भी नहीं करना। ये बहुत अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ये कितने कड़े-कड़े हैं ना, बिल्कुल जी साफ-सुथरे जी अहकामात हैं, तो अहकाम आज करता हूँ। मुसलमानों को पता है इनका। नहीं बच हुँ, फिर किसी को पता कित भी हो कित तो करे वो आपने अमल नहीं बाजी करेगा। हमें दिया था पहले, जो आपने अदा किया है ना सूरत अल-निसा का टेस्ट, वो हमने भेजा है आपको। भेजा है ना? जी हाँ तो जी, ये भेजा है देखिए हमने। ना, अब हाँ इस जी ये भी शामिल कर लें उसी में, ठीक है? अच्छा इसको इसका हिस्सा भी डाल लें कि अब सारे चीज़ों का निचोड़ जहाँ पे आ रहा है, ठीक है? जी ठीक। पहली सभी आयतों का निचोड़ है जहाँ पे। 23 तक की है ना हमने। हाँ हाँ जी जी हुँ, 23 तक किया है। हाँ जी, चार सपारे खत्म हो गए थे ना, चौथे सपारे का। हुँ। हाँ जी अल्लाह ताला बिल्कुल कि अल्लाह ताला ये तो गुनाह जो है, जो कत्ल का है गुनाह, ये ज़िना से भी ज़्यादा हो गया ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको तो मौत के बाद भी दोज़ख की आग में ही दाखिल करेंगे। अल्लाह यानी ऐसी बड़ी सज़ा है, कोई कत्ल खुद को कर दे तो या किसी को कदर कर दे तो। क्योंकि जानबूझकर कत्ल करना दोज़खी है बंदा, जानबूझकर कत्ल करने वाला, जिसको जान इरादा करके किसी को कत्ल करे तो जी वो। जी हुँ, जो ख़तान हो जाए, जो हाँ जी, गलती से हो जाए, तो गलती वो से हो फिर जाए। हाँ जी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अल्लाह गफूर रहीम है, अगर कुछ जी हो गया है, अल्लाह बेहद रहम करने वाला है। अगर किसी को गलती से हो गया, कस्दन नहीं, कस्दन जी वो ज़ुल्म है जी और उसकी दोज़खी आग है। यानी कि वही ठिकाना है, और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए बहुत यसीरा आसान है, है। हाँ जी बहुत आसान है अल्लाह के लिए ये। मत सोचना कि सजा अल्लाह ताला कैसे देगा। अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह के लिए रहम करना अगर आसान है, तो ये भी बहुत आसान है, सजा देनी भी। अगर तुम उन बड़े-बड़े गुनाहों से बचोगे, ये जो बड़े-बड़े गुनाह ऊपर बड़े-बड़े गुनाह हैं, ठीक है? जी ज़िना करना, कत्ल करना, अपने आप को कत्ल कर देना, बड़े-बड़े गुनाह हैं, है ना? हक महर ना औरतों का अदा करना और उनको उनसे ताल्लुकात कायम कर लेना। तो अल्लाह ताला जहाँ पे बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी छोटी बुराइयां जो हैं, छोटी छोटी गुनाह जो हैं, वो हम तुमसे दूर कर देंगे। यानी कि बड़े से बचोगे तो छोटी ये छोटी छोटे खताएं माफ कर देंगे अल्लाह, और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे, यानी कि
اللہ ताला फिर जन्नत में जगह देंगे, इज्जत वाली आमीन जगह देंगे। आमीन और जिस चीज में आमीन। अल्लाह ने तुम्हारे बाज को बाज पर फजीलत दी है तो तुम उसकी तमन्ना ना करो। क्या? अगर कोई दौलतमंद है ना, जी जी जा कोई वो हुस्न ज्यादा वाला है, जा किसी और लिहाज से है, कोई नफरी में औलाद में ज्यादा है, किसी तरह का भी है, तो क्या करो? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उसकी तमन्ना ना करो भी मुझे जे मिल जाए। जी जो कुछ मर्दों ने कमाया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिक्र की बात नहीं है कि जिसने जो कमाया होगा उसके मुताबिक उसका हिस्सा मिल जाएगा, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। ये नहीं है कि किसी औरतों ने इतनी मेहनत की हो आखिरत के लिए और अल्लाह ताला क्योंकि वो औरत है तो उसको ना दे, और मर्द जो है उसने मेहनत की तो उसको दे दे। ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा होता है ना। जी जी औरतें कई दफा कितनी जान लड़ाती हैं और मर्द जो है आराम से उनकी कमाई भी खाते हैं और अपना भी नहीं देते, अपनी कमाई भी नहीं देते। तो ये फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा कोई करेगा, जो कमाई करेगा, ये कौन सी कमाई है? अमाल की। कमाल की। ये हाँ जी अमाल की कमाई है, याद रखे। ये दुनिया की कमाई नहीं है, ये अमाल की कमाई है। जैसे अमाल कमाएंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके मुताबिक उनका हिस्सा अल्लाह ताला दे देगा। और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो। क्या मांगते रहो? अल्लाह फजल का फजल ही मांगते रहो, अल्लाह का मांगते करम ही मांगते रहो। अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह बहुत करीम है। लेकिन अगर अल्लाह से अगर डरते रहोगे तो अल्लाह मेहरबान है। बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी कि अल्लाह को पता है उसको धोखा क्या देना, अल्लाह को पता है, वो तो देख रहा है, जी उससे क्या छुपाना। अगर कुछ छुप छुपा के भी करोगे तो अल्लाह को पता है, जी अल्लाह इल्म वाला है। और आगे क्या है? और हर एक के लिए हमने बनाए, और यानी जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए, माल वरासत ही तकसीम पहले भी हो रहा था ना, जी अब फिर वो बात आई है सब कुछ बताने के बाद। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार छोड़ दें और छोड़ जाएं, उसमें हमने हर एक के लिए वारिस बनाए हैं। किसने बनाए हैं? अल्लाह ने। जी मवाली, मवाली क्या होता है? जो माल का बस वारिस हो। हम कहते हैं बाग का माली होता है ना, जी जी तो ये मवाली है, वारिस होना। तो और जिन लोगों से तुम्हारे अहदो पैमान हूं तो उन्हें उनका हिस्सा दो। यानी कि अगर वादे किए हैं किसी से तो उनको वो पूरा करो, वादों को पूरा करो। लेकिन विरासत में माँ बाप या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए तो वो उनके वर्सा का ही हक है। अगर किसी से वादा किया है तुम्हें मैं ये दूंगा ये दूंगी, तो वो वादे दुनिया में ही पूरे कर जाओ, या वसीयत की सूरत में कर जाओ पूरे। यानी किसी और से जो जो तो हक है, हकदार है विरासत में जिनको मिलनी है उनको नहीं, बल्कि हाँ दुनिया में रहते हुए जिंदा इंसान हो तो जिसको मर्जी चाहे वो अपना माल दे। लेकिन जब फौत हो जाए तो उसकी तकसीम कैसे होगी, वो फिर वो भी देखा जाएगा। इंसान मारने से पहले वसीयत करता है ना, तो वसीयत करने में वो फिर उनका ख्याल रखे जिनसे अहदो पैमान कर रखे हैं, उनको उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह है, यानी कि जो तुमने कहा वो अल्लाह उस पर गवाह है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी हदायत अता फरमाए। जे कोई आमीन। इसमें कोई है तफसीर की बात, नहीं है ना? जी हुक्म है ना, सारे हाँ जी हाँ अहकामात जी हैं। जी जी हाँ अल्लाह जी हुक्म दे रहा है। अल्लाह जी कहीं कभी भी नहीं चाहता कि तुम ऐसे कामों पर खर्च करो माल जो शर्म गुनाह हो, या इसराफ के हों, या बेजा खर्च करना हो। ठीक जी है? जी क्योंकि ये शरीयत की रूह से ममनू और नाजायज होंगे। जी तो ये फिर क्योंकि अल्लाह ताला ने लात का लफ्ज इस्तेमाल के ला ताकुलू है ना, ला जी ताकुलू का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, हाँ कि तुम जे खाओ हाँ हमें पता है मत खाओ। हमने जी पढ़ा जी था ना खाओ या मत खाओ। मत मत खाओ खाओ लात हाँ जहाँ जी पे मत भी खाओ आता है हाँ जी तो नहीं में है ना, जी नहीं में जी हमने पढ़ा था कि ना नहीं में करो है हाँ जी स्क्रू और लात लात। लात हाँ 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 जी जी वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसी में है ये आया है। अगर हम नाहक
कोई भी हो, किसी को तसर्रुफ करे, माल का खर्च करे, खाना चाहे हो जैसे किसी का आम माल है तो उसमें खूब, क्योंकि किसी ने माल दिया और खूब खाना बनवा लिया और खाना बाद में खराब हो, आम ही है ना चीज ये। जी जी किसी ने तो माल दिया फजूल खर्ची के लिए, क्या उसने अपनी मेहनत की कमाई दी थी? नहीं। नहीं ना दी थी। हाँ जी जैसे मैं अपनी कमाई को इस्तेमाल करूं, अपने पैसे को इस्तेमाल करूं बहुत संभाल कर, फिर दूसरे के पैसे की भी हिफाजत करनी है। हम्म? जी तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने अहद व पैमान जो है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और जमहूर सहाबा के नजदीक तमाम इन सूरतों पर ये हावी है जो शरअन ममनू और नाजायज है, जिसमें चोरी, डाका, गदब, खयानत, रिश्वत, सूद, जो भी ऐसे मामलात हैं जो फासिद होते हैं, जिनमें गलत तरीका इख्तियार किया जाता है, ये सारे इसमें आ जाते हैं बातिल तरीके में। ठीक है? जी क्यों? क्योंकि बातिल के तरीके से कोई माल खाने की तशरीह, तफसील जो भी है, कुरान करीम ने एक लफ्ज बिल बातिली फरमाकर तमाम नाजायज तरीकों से हासिल किए हुए माल को क्या अल्लाह ताला ने कह दिया, हराम करार दे दिया। ठीक है? जी हराम है बातिल तरीके से माल खाना या कमाना, वक्त गलत तरीके से। कोई भी तरीका हो। जी सहाबा इकराम ने उसको डाल दिया, उसमें बातिल में ही डाल दिया। एक लफ्ज है सिर्फ जिसमें ये जी सारी कबाहतें आ जाती हैं। फिर इन नाजायज तरीकों की भी अल्लाह सुब्हाना तआला के नबी ने वजाहत फरमा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नाजायज मामले की तफसील बयान कर दी और वाज़िया तौर पर बता दिया कि क्या जायज है और क्या नाजायज है। ठीक जी है? जी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं इस बारे में। जितने भी शरई अहकामात हैं, इनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी-पूरी रहनुमाई दी है हमें, और कुरानी आयात को तशरीह उनकी की है कि इससे क्या मुराद है। हमें मालूम हो या ना हो, है ना? क्योंकि हम नहीं जानना चाहते ना इन आयतों को। तो जानना है, हमने जानना है, और जायज़ तरीकों से माल भी और मिरास भी और जिस तरह भी तिजारत भी, कोई भी काम हो, ब्याह शादी का हो या जैसे भी हो, उसमें हमें बचकर इस्तेमाल करना है माल भी, और किसी की मेहनत की कमाई को भी नहीं ज़ाया कर देना, और अपनी भी मेहनत की कमाई को गलत कामों में लगाकर अपने लिए वबाल नहीं खरीद लेना। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए हाँ और बातिल तरीकों से हमारी हिफाजत फरमाए, और हमारी औलादों को भी, कई भी, और तमाम उम्मत मुसलमान की भी। हाँ, आमीन। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दूसरे का माल खाने के बारे में, कि कस्बे माश के ज़रिए में दराए में तिजारत व मेहनत सबसे अफ़ज़ल है ना? कस्बे माश जब करता है इंसान, क्या है कसब, क्या होता है? कमाना, और माश कमाना जो हम मालो माल दौलत जो भी कमाते हैं वो, है जो ना? भी होता है। हाँ मेहनत सबसे अफ़ज़ल है, यानी कि अब बातिल तरीके से माल जब लेते हैं तो मेहनत नहीं उसमें शामिल होती ना? जी जी तो मेहनत तो अफ़ज़ल काम है ना? तो जी दूसरे का माल हासिल करने की जायज़ तरीके सूरतों में से इस आयत में सिर्फ़ तिजारत के ज़िक्र करने की एक वजह ही बयान की जाती है, जहाँ पे कि कस्बे माश के ज़राए से तिजारत और मेहनत सबसे अफ़ज़ल और तय्यब है। तय्यब ज़रिया माश है तिजारत, और क्या है? मेहनत से मेहनत से। कमाया हुआ माल। हज़रत राफ़ी बिन खदीज जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दरियाफ्त किया गया कि कौन सी कमाई हलाल व तय्यब है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी इंसान के हाथ की मजदूरी और हर सच्ची बैह और शरा। क्या? बैह क्या होता है? खरीदो फरोख्त है ना? होती है ना? जी बैह अच्छा का माल भी कहते हैं ना? कभी सुना होगा आप जी। लोगों ने, बैह का माल। नहीं बच्चे तो नहीं आप नहीं बच अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि नहीं। वसल्लम ने
تو حضرت بے کا مال بھی ہوتا ہے یعنی کہ شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، لوگ نہیں ابھی سنا. بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جس میں اچھا جھوٹ فریب نہ ہو، ہاں جی یعنی اچھا کہ محنت حق حلال کی کمائی، سچی بے و شراک، یعنی کہ جس طرح بھی انسان کماتا ہے، محنت جس سے طرح کم بھی تجارت بھی کرتا ہے، یہ بھی ہے نا۔ حضرت جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تجارت جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں یہ نچوڑ لینے ان آیتوں کا جتنی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچہ یہ نچوڑ ہے ان آیتوں کا، جی کہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان سچا تاجر جو جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، قسم اللہ کی مجھے تو یہ اتنا تو مجھے گھر بھی نہیں بیٹھتا، تو وہ جی تھوڑی دیر بعد وہی آدھی قیمت پہ آ جاتا ہے، جی پھر اس کے گھر بیٹھنے کی کیا حالت ہوتی ہے نا۔ پھر کیا ہوا، تو یہ ہے جھوٹ بول کر تجارت کرنا، قسم جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرنا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے بھی درجے دیے ہیں اس کو نا، اتنے جی انبیاء کرام کے درجے، جی صدیقین، شہداء۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطی کہ وہ بات چیت کرے، بشرطی کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولے، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ خیانت کرے، نہ کرے. خیانت نہ کرے اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، یعنی کہ جب وہ ہوتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں یہ مال خراب ہے، جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک منٹ۔ فون بند ہونے بھائی جی بند ہونے لگا کیونکہ اس کی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چلا گیا، ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ معاش بتایا ہے بس ہم اس پر عمل کریں نا تو اتنا ہی بہت ہے نا۔ حلال جی کی پاکیزہ کمائی ہو، اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کدھر جاتے ہیں، ہے نا۔ اگر جی انسان قسمیں کھا کر مال بیچ بھی دیتا ہے، خرید بھی لیتا ہے، تو کیا ہوگا، قیامت کے دن تو دینا پڑے گا نا۔ جی قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گناہگاروں کی صف میں ہوں گے، بے جز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے نا۔ تو سچ، دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ تجارت میں کیا ہے کہ شرائط اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا باہم رضامندی سے، جی تو کیا ہے آیت میں، اس آیت میں تجارت کے ساتھ جو بھی بتایا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، سٹا جا، ربا اور سود کا معاملہ ہو، جا مال ابھی موجود ہی نہیں اور اس کا سودا کر لیا۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا آج کل کیا کرتے ہیں، درخت کے اوپر ابھی پھل آیا نہیں ہوتا تو بیچ دیتے ہیں اس کو، سودا کر دیا، ابھی مال ہاتھ سامنے نہیں ہے اور پہلے ہی اس کا سودا کر دیا، جب مال آیا تو وہ اس کے اور آلریڈی وارث تھے مال کے۔ محض ذہنی قرارداد پر اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے، وہ بیع باطل اور حرام ہے۔ بیع کا مال یہ ہے کہ صرف مال سامنے نہیں ہے اور اس کا سودا کر دیا کہ جب آئے گا
पहले ही सौदा कर दिया, क्योंकि सामने तिजारत क्या है, माल सामने है। अब आप कपड़े लेते हैं, हम कपड़े लेते हैं तो क्या करते हैं, तो देखकर, हाँ जी, ताजर क्या करता है, वो हम कपड़ा देखते हैं, उसे परखते हैं, उसे खोल के देखते हैं, देख कपड़ा कर लेते हैं मोटा जी। है, बारीक है, कैसा है, फिर जी लेते हैं। अब दरख्त के ऊपर अभी फल नहीं आया, हो सकता है सारा फल गिर जाए, जी नीचे गिर जाएगा तो क्या करेंगे, तो वो तो बैग का माल हो गया ना फिर। तो जी। ये हराम है, ये बातिल तरीका। अब पता चल गया बैग का माल क्या है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो इस तरीके से जब तजारत करते हैं लोग, यानी मुबादला करते हैं, एक दूसरे से तबादला करते हैं, तो क्या होगा, लेकिन इसमें दोनों तरफ की रजामंदी शामिल नहीं हो, ना हो, वो भी बै फासद है। वो भी फासद क्या होता है, हम्म? असल तो फासद यानी कि वो बिल्कुल टूट गया, वो कोई हाँ जी, बैन नहीं हुई, और जी नाजायज तरीका है ये, क्योंकि रजामंदी दोनों की शामिल नहीं है ना, जी। तो वो भी जायज तरीका नहीं है। और ये दोनों सूरतें माल खाने, बातल तरीके से माल खाने के मुकाबले में आती हैं, ठीक है, उसी जी में दाखिल हैं ये। पहली सूरत को फुका ने बै बातिल के नाम से मसूम करते हैं फुका, और दूसरी सूरत को बै फासद के नाम से, एक बातिल के, और जो माल ही नहीं था और वो कर दिया, वो उसका क्या है, बै फासिद है। ब्रेकफास्ट। और जो माल माल तो मौजूद था, लेकिन दोनों रजामंद नहीं थे, दोनों जी साइड के, तो जी। वो बै क्या है, उसका क्या है, बै ब- नाजायज है, जायज नहीं है वो, अच्छा अच्छा। ठीक है, उसको बिल्कुल इंसान खा नहीं सकता ना। जी तो ये फिर बै बातिल हो जाएगी, ठीक है, और बै जी, हम लिख लेंगे फासिद हो आपकी जाएगी, सुनकर। फासिद हाँ और जी। बातिल, ठीक है। हम्म, बातिल जी और फासिद में क्या फर्क है, रिकॉर्ड हो रही है। तो हाँ जी, हो रही है, लेकिन ये है कि हमें समझ आनी चाहिए, आजकल हाँ सब जी, कुछ जी हो रहा है, हाँ जी जी, ये दोनों ही सूरतें हो रही हैं, जी है ना। कई दफा जी वो कहता रहता है बेचने वाला कि नहीं, मुझे नहीं इतने का, नहीं इतने का, पैसे फेंके और माल ले गए, हम्म, ऐसे भी होता है। और अब जी ये क्या है, बैक कौन सी है, फासिद है, असद। ठीक है। और बातिल कौन सी है, जो माल अभी था ही नहीं, आई मौजूद नहीं, ही हाँ जी नहीं है, जी। पता नहीं है कैसा होगा, और कीमत वसूल कर ली, या देने वाले ने दे दी, तो ये है बगैर देखे। बगैर देखे चखे। तो तो जिसने अल्लाह बगैर देखे खरीद ली उसके वो अब वही है ना, बातिल उन्होंने दोनों ने किया है ना काम, बात है ना, क्योंकि उसके भी सामने सौदा मौजूद नहीं था, उसने क्यों पैसे दिए, क्यों खरीद ली, जी। है ना। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें हिदायत अता फरमाए। ये तो लंबे चौड़ी तो नहीं मैंने लेकिन हमें पता तो चले फासिद क्या है और गलत तरीका क्या है, बै गलत क्या क्या है। है, हमें बै का माल का भी पता चलना चाहिए। आजकल तजारत में लोग यही कुछ कर रहे हैं, पूरे बागों के बाग बेच देते हैं, अभी फसल उसमें आई नहीं होती, हम्म, है ना। छोटे छोटी ही अभी फ्रूट होता है और उसको बेच देते हैं, जी अभी कोई पता नहीं है कि वो फल पक कर तैयार हो, जब तक होगा ये दरख्त पर रहेगा भी कि नहीं। हम्म, हम्म, ये सारी चीजें हैं, और तीसरी किस्में भी हैं, और लंबी लंबे अहकामात इसमें आ जाती हैं, जब इंसान एक शख्स या एक कंपनी स्टॉक कर ले माल को, एक तरफ समेट कर रख ले माल को, और फिर उसकी कीमत में यानी कि खूब इजाफा करके फिर हाँ जी। उसको फरोख्त तो करे, जी इंतजार क्योंकि करें कि महंगी बाजार में होगी। हाँ, इंतजार की महंगी होगी तो फिर बेचेंगे, हाँ जी। हम्म, तो ज्यादा फिर कीमत से ज्यादा लोगों कीमत को लेंगे। उसके यानी कि जब फिर लोगों को सिर्फ उसी से मिले, बाजार में किसी और से वो चीज ना मिलती हो, जी तो ये भी इसी में आ जाता है। अच्छा। ग्राहक मजबूर होकर उसको लेते हैं, और महंगी सस्ती जैसी भी उसने देनी हो, वो जी फिर फरोख्त करता है उनको। जी और फिर लोग जो हो उसको लेते हैं, क्योंकि ग्राहक मजबूर होते हैं। जैसे जी किसी ने गल्ला स्टॉक कर लिया, जी पूरा ही स्टॉक कर लिया, और किसी बाजार में अब रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, दाने नहीं मिल रहे, और लोगों को फिर वो मुंह मांगी कीमत लेकर फिर मजबूर करते हैं कि लेनी लेनी ही जी पड़ेगी लोगों को। जी ये है।
आज हो रहा है ना ये भी हाँ तरीका? जी हो रहा है, हाँ जी बाजी, हाँ जी। तो क्या वो गाहक फिर रजामंदी से खरीद रहा होता है अपनी से? नहीं मजबूरी खुश में, हो के? मजबूरी में मजबूरी में, तो ये भी क्योंकि जी इसकी ये रजामंदी दर हकीकत एक मजबूरी के तहत फिर हो जाएगी, जी तो इसलिए ये काला दम है, इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, जी तो ये फिर जाहिर है कि अगर शोहर और बीवी के मेहर के मामले में है तो शोहर भी मजबूर कर देता है कई दफा कि माफ करोगी तो फिर है ना। जी रजामंदी का औरत का इजहार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो देते नहीं है जहाँ कहते हैं माफ कर दे। ये सारी चीजें हैं जो लंबी चौड़ी, इसमें जितने पेशेले अहकामात है ना, उनमें जी आप देखते जाएं तो उसको इससे लिंक करते जाए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी तो अगर मैं हो सका तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि अगर इसकी भेज दूं कुछ, बाजी, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेज दें, मैंने सुनकर जी लिखना है थोड़ा सा ना। हाँ जी इंशाल्लाह। इसका माल फासद जो है ये हाँ तो जी, फिर माल के बारे में जो नाम है ना, हाँ जी वो मैंने लिखना है जरूर, हाँ हम्म, जी इंशाल्लाह। ये भी इंसान के लिए एक ना वबाल का बायस होगा ना क़यामत के दिन, जी वबाल का बाजी, बायस हाँ होगा जी ये भी, है जी ना। हाँ जी बहुत बड़ा आजकल तो तजारत तो खूब करते हैं ना इसका, हम्म करते हैं ना। जी बाजी, हाँ जी हम्म, ये अल्लाह सुब्हाना तआला हमें माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आप लोगों के लिए ये आयत मैंने भेज दी है, इसकी तफसीर भी, हाँ जी बाजी आ गई, हाँ जी ठीक है, हाँ जी आ गई। तो हाँ आप जी देख लें उसको भी इंशाल्लाह। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। ये भी बहुत पॉइंट हमारे जो है वाकई सीखने के हैं, जी अगर हम सीखें तो। अल्लाह हमें तौफीक अता